that thing also been stopped. There was some people no doubt have misused that opportunity. That I know personally. I traveled to many countries with the former President PM and also the ministers. But I found that yes, some of them have definitely misused that. Doesn't mean that you will stop access to basic information. It was an opportunity for media to interact not only with the political executive, but also with the officials who travelled along with the PM or President or Foreign Minister or Defence Minister. So basically this government is actually become a kind of the information is coming almost one-sided from the only on the government side. If you see what I personally feel, the interviews are given in the newspapers, almost like a PID handout. There is no serious questions, counter questions was asked. So looks like that it's all manipulated interview are being given. So that's why one day, so what would be the next step, what we can do? That's a real point we should discuss now. That we think actually from Press Club of India, we are planning something. We have formed a committee on media policy or media charter, whatever you give them name. We are trying to work out a policy. We will approach to the new government, whoever comes into power, that there should be, they can take some of the suggestions or they can do some, but there should be a national media policy. About many issues we are discussing. And it is not unilaterally Press Club of India will do. We will definitely consult you, all the stakeholders of the media, especially all the media organizations, all the press club of other press clubs, state press clubs of India, whom we recognize as a legitimate body, a democratic body. So we are planning to invite all of you, even the rest of the people, those who are not even in any office bearer, they can also come and join. It's almost like a public meeting. We will circulate that draft. But what should be the policy, media policy or national media charter? So after discussing with all of you, definitely we will surely take your inputs and then we will finalize the document. I think that will be a big achievement if we can achieve to that. And that will give a kind of a sense of unity among all the journalists, which we are lacking today. So I will not speak much. I think enough whatever I have to say, I say. Wish you all the best and wish you all the best that you should enjoy the freedom in the years ahead. Thank you very much. नारायण सर को आमंत्रित करूंगी कि वे अपनी बात रखें. नारायण सर. Journalists from other institutions, good evening. I want to congratulate the IWPC Executive Board planning an event of this kind and inviting heads of several media institutions. This is a very good initiative and I want to congratulate you on this. Now, freedom of the press. It is a very good concept. It's more of a myth than reality in the existing world. We don't really have freedom of the press as it should. Freedom of the press means, an American magazine wrote some time ago that freedom of the press does not mean freedom of the journalist, but freedom of the press means freedom of the people who own the press. Now, depending on the kind of leaders there are in the world, you have problems dealing with them. Like Donald Trump doesn't care much for the media and he gives interviews to only one particular television channel and so on. Mr. Putin has his own likes and dislikes. A lot of journalists are in there. Xi Jinping has a similar issue.
In Myanmar, a journalist from Reuters, two journalists were kept in prison for a long time. In India, we had emergency during the Indira Gandhi's time. And when the elections came, she was ordered out of power. When Rajiv Gandhi came, he also tried to impose some restrictions, but journalists took out huge positions and protested, and the idea was dropped. And now, as Gautam says, we have a prime minister who is popular even after doing 2 terms, not only in India but abroad also. He has not taken the trouble of meeting the media even once, except granting, transcripted interviews to people. And I think there is a misconception in the minds of some leaders, particularly at the moment, that if anybody writes anything critical about a policy decision taken by the government, that is taken to mean that that particular institution or journalist who is writing a critical editorial or reportage is against the government. They think what the French Louis XV said, "L'État c'est moi," I am the state. So, if you are the Prime Minister of India, everybody must respect what I say. What I say is the law. If anybody writes critically, that means he is not only enemy of myself, my government, but the state of India. We have been watching the situation here, BBC, Newsclick, NDTV. I don't really need to go into all these things. And we also have leaders like Jayalalitha who filed 120 cases against newspapers, including the Hindu. And we have a case of Mamata Banerjee filing a case against somebody because he simply shared a cartoon which appeared to be critical. This is a ridiculous state of affairs. Press is a very important organ of society. In a country like India, you have more than 1 lakh of newspapers and magazines read by 60 crores of people. We have 1,000 TV channels, out of them 400 are news channels, which are seen by more than 90 crores of people. And we have 120 crores of people have mobile phones. Half of them have smart mobile phones where they can see IPL matches free thanks to Jio or what BBC or anything. So as a result, people are aware of what is going on in the country. So any effort to kind of create problems or harass people who have the courage of the conviction and criticize a particular policy of the government, that must not be misconstrued as a move against the state of India, which it seems to me at this point of time, the present dispensation seems to think. I think this is not a very happy state of affairs. There is every possibility now we are going through an election. Opinion polls and recent trends, reports in the media seem to suggest that the present dispensation appears to win a 3rd term. So let us hope at least when a new government takes office, whether it is BJP or India or whatever, that they will have a very sensible, practical, realistic approach, and they must not try to suppress the freedom of the press in this country. They must realize that the right to criticize is a part of freedom,
Once Gandhi was told by Englishmen, if we leave your country, you cannot digest the freedom and India will be in serious trouble. Gandhi had said, freedom means the right to make mistakes. So, people who run the government in the center or in the states must realize that the press has the right to criticize and they must allow the press to function freely. And I'm very happy about the initiative the Press Club of India under government is taking. We're very happy to associate ourselves with it. Let us produce a document and present it to the new government which takes office in mid-June. And let us fight for our rights and go all out to defend our freedom to write what needs to be written to keep the people of India informed. Thank you. कोई भी हो, लेकिन हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है उसको कोई दमन का शिकार नहीं कर सकता। और अगली बार इस इलेक्शन के बाद नई सरकार आएगी तो उससे हम उम्मीद से नाता जोड़ सकेंगे और पत्रकार बिरादरी अपनी अभिव्यक्ति को, अपने शब्दों को, अपनी लेखनी को और मजबूत कर सकेगी। धन्यवाद। अब मैं हमारी बहुत पुरानी सखी और बहुत पुरानी सीनियर वरिष्ठ पत्रकार सुजाता मधोक जी से, जो कि प्रेसिडेंट दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हैं, से अनुरोध करूँगी कि वो अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। धन्यवाद। सुजाता जी। देख रही थी पिछले कुछ सालों में, खासतौर से 2-3 साल में क्या क्या हुआ है, किस तरह के हमले हैं। मैंने समझने की कोशिश करी क्या क्या होता है। तो देखिए, एक तो फिजिकल अटैक्स हैं, जो पहले एक ज़माने में आपने सीपीजे की बात करी, तो एक बारी साल पहले एक सीपीजे के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उन्होंने मुझसे मुलाकात करी और पूछा कौन से अटैक्स हो रहे हैं, आप लोग के यहाँ कुछ अटैक्स हैं, प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है। और उस समय मैंने कहा नहीं, दिल्ली में तो ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है, ऐसी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, छोटे शहरों में थोड़ा बहुत होता है, कुछ अटैक्स होते रहते हैं, पर हमारी इतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स नहीं है। अब स्थिति बहुत अलग है। तो फिजिकल अटैक्स अभी भी जो छोटे शहरों में है, जो स्ट्रिंगर्स हैं, लोकल सैंड माफिया के बारे में कोई स्कैंडल छाप देते हैं या कोई और स्कैंडल के बारे में किसी को, जैसे अभी चंडीगढ़ में आप देखिए पंडेल साहब के ऊपर अचानक उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, और तो देयर वाज अ हाई कोर्ट ऑर्डर गिविंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, पर फिर भी पुलिस तो यही सब करती है। केस के मतलब मैं डिटेल्स तो इतनी जानती नहीं हूँ, क्या सच क्या झूठ, लेकिन ट्रीटमेंट के आर्बिट्ररी ट्रीटमेंट चलती होगा। अभी कुछ समय पहले एक महापंचायत हुई थी, हिंदू महापंचायत, तो वहाँ पे कई जर्नलिस्ट ने कहा था कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, और इंटरेस्टिंग पुलिस ने उनको इकट्ठा करके वहाँ से निकाला था। तो इन दैट वे दे वर रेस्क्यूड, बट केस एक जर्नलिस्ट के ऊपर हुआ और आर्टिकल 14 पे हुआ, एक मीर फैजल और एक आर्टिकल 14 के ऊपर केस किया गया। तो ऐसे कई चीज़ें आजकल हो रही हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग, द मीडिया itself does not play up these cases. We don't support, we don't show enough solidarity. ठीक है, अब प्रेस क्लब जरूर इशू कर रहा है स्टेटमेंट, IWPC भी कर रहा है, हम डीजे की तरफ से भी कर रहे हैं, बट द पेपर्स फॉर इंस्टेंस डोंट कैरी दिस इंफॉर्मेशन विद द काइंड ऑफ प्रोमिनेंस that's required, because that would be a shield against such misbehavior by the authorities. But it hasn't really happened. Being attacked, held by the neck by a policeman during one of the Aam Aadmi
protests. Shocking. I am not expected to see such a thing in the middle of the city, but we all saw it. So there is great need for solidarity in all these situations. Now, apart from these kinds of physical attacks, there are all the virtual attacks. And I would consider the internet bans themselves as a virtual attack on both people's rights and press freedom, because it makes it very difficult to get the news out. कश्मीर में 6 महीने हुआ था इंटरनेट बंद, मणिपुर में 7 महीने तक इंटरनेट बंद किया गया, और इससे रूमर्स तो स्प्रेड होते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड होती है, हम लोगों का काम बहुत मुश्किल हो जाता है. So in that sense, it's a direct attack on press freedom. उसके अलावा वर्चुअल अटैक्स क्या होते हैं तो औरतें खास तौर से समझती हैं. ट्रोलिंग, sexist trolling, threats of all kinds, rape threats are very common, death threats, and there's a long list of women journalists who have complained about it. And some, of course, have even kept quiet. But many have spoken out and said that this is what's happening to us. Even doxing. In a couple of cases where doxing means कि उनके एड्रेस आपने फेसबुक में या सोशल मीडिया में डाल दिए तो कोई भी उनके घर पर पहुंच जाए, तो उस तरह की थ्रेट्स वर्चुअल वर्ड से एमिनेट करती हैं. एंड वी नो दैट आवर सोशल मीडिया प्रोवाइडर्स विल डू नथिंग अबाउट इट, एंड वी नो दैट आवर साइबर क्राइम्स यूनिट will do nothing much about it. So this is something we just suffer and deal with as best as we can. और फिर कौन पूछ सकता है वो जो थे बुल्ली डील्स, सुल्ली डील्स, एक के बाद एक. ठीक है, वहाँ पे पुलिस ने थोड़ा बहुत एक्शन लिया है कि इतनी औरतों के ऊपर वो अटैक हुआ था, इंक्लूडिंग मेरे ऊपर, तो कुछ लोग पकड़े गए हैं. शायद ऐसी हरकत दोबारा ना हो, तो कोई गारंटी नहीं है आज के माहौल में. फिर लंबी चौड़ी लिस्ट तो है जो लीगल अटैक्स बाय मिसयूज अब्यूज ऑफ द लॉ. हम जानते हैं किस तरह से सेडिशन लॉ को इस्तेमाल किया जाता है. कई बार सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, बट द सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट टेकन अ क्लियर स्टैंड ऑन सेडिशन. आपको याद है कुछ ट्वीट्स के लिए भी सेडिशन केस लगाए गए थे. जब फार्मर्स एजुकेशन हुई थी तो राजदीप सरदेसाई, कुणाल पांडे वगैरह पर, और वाया के ऊपर उसके बाद केस भी डाला गया था क्योंकि उन्होंने लिखा था कि एक फार्मर की डेथ हो गई है. किस वजह से डेथ हुई, पुलिस ने कहा नहीं, फायरिंग में डेथ नहीं हुई है, और इन लोगों ने कहा कि पुलिस फायरिंग से डेथ हुई. तो दैट led to these sedition cases. अभी मामला शायद स्टेट है उस पर, but remember nothing is ever over. And it can, any case now we know can come up 20 years later when we use at will when required. और वो भी केस अभी चल रहा है, सालों के साथ चलेगा, हालांकि वो बेल पर है. इतना कश्मीर में जो होता है हम सब जानते हैं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट इज एज ड्रैकोनियन एज वी इंडियन. इसके अलावा जो एक ट्रेंड है, और परंजोर ने तो पूरी किताब लिखी थी इसके ऊपर, डेफेमेशन केसेस जो कॉर्पोरेट्स भी करते हैं और इंडिविजुअल्स भी करते हैं जर्नलिस्ट पर. और ख़ासतौर से कॉर्पोरेट्स करोड़ों रुपए मांगते हैं, तो आम जर्नलिस्ट या छोटी संस्था कहाँ से दे पाएगी. तो डेफिनेशन पर डराते हैं कि जी आप 1 करोड़ डैमेजेस दीजिए, तो उनके पास वकील है, उनके पास बहुत साधन है, और आम जर्नलिस्ट के पास वो साधन कहाँ से आएंगे. तो लीगल एक्सपेंसेस इतने हो जाते हैं, मुश्किल पड़ जाती है. तो अभी रिसेंटली देखिए कितने केस, अभी 1-2 महीने एक ये पॉलिटिशियंस वाला मामला भी, ये ट्रेंड पॉलिटिशियंस के साथ भी हो रहा है.
तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जी, उन्होंने स्वाति चतुर्वेदी की किसी ट्वीट पे डेफिनेशन केस करना था। पुणे में निखिल बावले के ऊपर उन्होंने भी ट्वीट किया था मोदी और अडवाणी के ऊपर, शायद ये जब भारत रत्न दिया गया था उसके, तो उन पर केस हो गया। अप्रैल में अरुण पुरी, राजदीप, शिवानंद के ऊपर कोई केस किया गया है, किसी पॉलिटिशियन ने किया है, तो महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन है। 2016 का कोई कैश फॉर वोट स्कैम था जो इन्होंने कवर किया है। इंटरेस्टिंग है कि अरुण पुरी को भी उसमें लगेगा। फिर याद है तरुण तेजपाल का मामला, उन्हें तो कहा गया कि 2 करोड़ आप दीजिए क्योंकि आपने वी कैन हैव डिफरेंसेस ऑन हाउ वी लुक एट तेजपाल इन दैट केस, लेकिन ये कहा गया है कि आप 2 करोड़ दीजिए क्योंकि यू हैव डिफेम्ड एन आर्मी, अ सीनियर आर्मी ऑफिसर बाय एलिजिंग दैट ही टुक अ bribe। और कई बार ये उल्टा भी पड़ जाता है, जैसे कि तेजपाल वाले मामले में जर्नलिस्ट के ऊपर हो गया। लेकिन प्रिया रमन, classic example of how defamation can be used to threaten a journalist. Now in this case she was the victim, but the case was filed against her, and it is with great difficulty, only because an exceptionally competent lawyer, I think like Rebecca, she was able to win that case. Case against her was quashed. So defamation is very tricky. Criminal defamation, not just civil defamation. This is something which again we must fight against because it's a very serious threat to journalists. In 2021, please remember there was an arrest warrant against Paranjoy Dua Thakur from a court in Kutch. And of course all these cases come from Gujarat, in small courts in Gujarat, done by Adani. And then the following year, 2022, there was an arrest warrant against Ravi Nair, because of a defamation case filed by Adani. So it's a long list. Now this is not the only kind of legal threats. I mean, you have QAPA, PSA, sedition, criminal defamation, and then you have the systematically in the last 3-4 years, the government attempts to control the social media, not just the rest of us, but the digital media, the social media. And so the IT Act in 2023, and then the rules which are quite draconian. We have seen how they're being used now to tell service providers, intermediaries, to take down YouTube channels, to take down comments, tweets, etc. Then there was the Telecom Act, again 2023. Then there's the Registration of Press and Periodicals Act, again 2023. Of course, all this was in the making over the past 2-3 years. But this is it. And now we have the Broadcasting Services Regulation Bill, which is one more looming danger. And I think in your last brochure, your souvenir, that issue is taken up very well. कि मैं अपनी लेखनी से, अपने विचारों से, अपने व्यूज़ के माध्यम से कुछ क्रांति कर पाऊँगी, समाज में कुछ जागृति पैदा कर पाऊँगी। लेकिन आज आज़ादी के इतने साल बाद भी, 75 साल बाद भी मीडिया का स्वरूप ऐसा बदला और ऐसे हाथ पांव हमारे बन गए, हमारी लेखनी बन गई कि हम लोग सरकार का या तो गुण गाएं या फिर हम चुप अपने घरों में बैठ जाएं, जबकि हम पत्रकार होने के नाते, चौथा स्तंभ होने के नाते ऐसा करने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं हैं और किसी के माताहत हम काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन हमारी चिंताओं के विषय में सबसे ज़्यादा एक बात जो आती है कि मीडिया का जो स्वरूप बदल रहा है, जैसे कि हमने पहले कहा कि डिजिटलीकरण हो रहा है और टेक्नोलॉजी जो है मीडिया में काफ़ी हद तक ज़रूरी भी हो गई है, क्योंकि हम सब लोग मोबाइल पे
ऑनलाइन कंप्यूटर्स पे काम करते हैं। तो बहुत कई पत्रकारों ने अपने मीडिया संस्थानों को, जब उनको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिली, अपनी बात कहने के मौके नहीं मिले, तो अपने चैनल शुरू किए हैं, अपने यूट्यूब चैनल शुरू किए हैं और उस यूट्यूब चैनल्स पे वो अपनी बात स्वतंत्रता से, निष्पक्षता से रखने के लिए हम सबके सामने आते भी हैं और हम लोग बहुत उनको फॉलो भी करते हैं और उनकी इस बातों को, उनके विचारों को मान्यता देने के लिए उनके फॉलोअर्स की संख्या को भी गिना जाता है। ये अपने आप में बहुत विस्मयकारी स्थिति भी है, जिसमें कि अगर किसी ने अपनी बात कही और उसके 10 फॉलोअर्स हुए तो हमें लगता है कि ये तो बहुत लचर सा कोई व्यक्ति है, ये पत्रकार नहीं हो सकता। और जिसके 3000 से 50,000 तक फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो ये जो पत्रकार, ये जो समाज में खबरों को संप्रेषित करने का जो माध्यम बदलता चला जा रहा है, और इसके लिए हमारे यहाँ बहुत तरह के लोग हैं, लेकिन हमारे पास हमारे पैनल में विधि पक्ष के साथी भी हैं। और अभिनंदन जी से मैं अनुरोध करूँगी कि मीडिया के बदलते स्वरूप पे और उसकी स्वतंत्रता पे आप विधि पक्ष के माध्यम से किस तरह से अपनी निष्पक्ष बात रखने में कायम रह सकते हैं और आप इस माध्यम को कितना उचित मानते हैं। अभिनंदन जी, प्लीज आप अपनी बात रखें। मेरे सबसे बड़े हीरो बापू हैं, हमारे देश के सबसे जाने माने पत्रकार, और डॉक्टर अम्बेडकर की, ये दोनों मेरे हिसाब से सबसे बड़े पत्रकार थे। ये तो जर्नलिस्ट अखबार चलाते थे। तो बापू ने कहा था दैट चेंज बिगिंस विद योरसेल्फ। तो दिस अनफॉर्चुनेट टास्क आई विल टेक ऑन माई सेल्फ। पहले हम अपनी खामियां गिन लें, फिर बाकियों की गिनाते हैं, क्योंकि अगर हम अपने आप को थोड़ा बदल लें तो फिर शायद आउटवर्ड बदल लें, क्योंकि आप किसी को नहीं बदल सकते, आप खुद अगर इतने कमज़ोर हैं। तो हमें ये देखना है कि जर्नलिज्म क्यों वैल्यूबल है, क्या है इसकी ज़रूरत, क्या है, वाई इज इट इवन इम्पोर्टेंट, क्यों लोग इम्पोर्टेंस है तवज्जो दे जर्नलिस्ट, क्या वैल्यू है वो जो प्रोवाइड करता है डेमोक्रेसी में, एंड व्हाट आर द वैल्यूज दैट जर्नलिज्म एक्चुअली प्रोटेक्ट्स और स्टैंड्स अप फॉर। और जो जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूज़ है, क्या वो उन वैल्यूज को डियर होल्ड करती है कि बस क्योंकि दुकान चल रही है तो चल रही है। अभी मैम ने बोला कि अरुण पुरी पर डेफेमेशन सूट किया, अरुण पुरी ने मुझ पर डेफेमेशन सूट डाला, वो क्या बात करता है जर्नलिज्म। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, उसको आई थिंक लोग कहते हैं ग्रैंड ओल्ड लेडी और बूढ़ी बंदे, पता नहीं ऐसे कुछ बोलते हैं, उन्होंने मुझ पर डाला हुआ है मुकदमा, क्रिमिनल डेफेमेशन। मुझे आजाद मैदान पुलिस स्टेशन से आया था फोन। तो जर्नलिज्म और जर्नलिस्टिक इंस्टीट्यूशन जिन्हें कहते हैं, जो मतलब कारोबार तो उनका करोड़ों का, लेकिन है ये 2 कौड़ी की दुकानें, वो क्या वैल्यू मानती है जर्नलिज्म। तो पहले हम अपना चरित्र तो देखें ना, फिर सरकारों का चित्र हम दिखवाएं लोगों को। How many journalists value journalism and the values that journalism should stand for? तो I think उसमें ज़्यादा वक्त नहीं होगा। मुझे लगता है 2-3 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं चेंज लाने के लिए। एक, do you have a plan? 2, do you have the means, resources to execute that plan? And third, will that plan lead to the change that you want? ये होता है चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई एड कैंपेन हो, चाहे आप साबुन बेचना चाहे, आप कमल बेचना चाहे, हाथ झाड़ू बेचना चाहे, जो भी बेचना चाहे, बेसिक वर्कफ्लो सेम रहता है। और क्योंकि मैं पत्रकार अपने आप को नहीं मानता, मैं अब एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं पत्रकार था 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 95 से लेकर 99 तक, जब मैं आज तक और न्यूज़ ट्रैक के लिए रिपोर्टिंग करता था, जो मधुर लहर की कंपनी थी, लेकिन आजकल चलाते हैं अरुण पुरी। तो उसके बाद मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस किया। तो अब डिजिपा पे एक ऑर्गेनाइजेशन हमने सेटअप की कि भाई एक एसोसिएशन होनी चाहिए जो डिजिटल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि हमने देखा है कि जो ब्रॉडकास्टर्स की एसोसिएशन है उनमें कितना विल है फाइट का, नहीं है फाइट का विल। यू हैव टू हैव द विल टू फाइट, you can't have good intentions.
सो मैं बस 3 चीज़ें बोलूँगा कि एक तो जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा एज अ जर्नलिस्ट, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, एज एन ऑर्गेनाइजर, मैंने बीच में 6-8 साल एक्टिविज्म भी किया जब हमने पीसीआर चलाते थे और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो हमने एक एनजीओ चालू की 2003-4 में। तो तब भी मैंने देखा था। तो कुछ मैं वीकनेसेस पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि लोग जो अच्छा काम करना चाहते हैं वो समझते हैं कि हैविंग गुड इंटेंशंस इज इनफ। इट्स नॉट। नो वन केयर्स अबाउट योर गुड इंटेंशंस। इट इज नॉट इफेक्टिव। आप घर पे बैठे थे, मैं इतना हाय, मैं इतना त्यागी, मैंने इतना कर दिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे पास साथ जो काम करना है, गिव मी a room full of mediocre people who are organized. I will destroy a room full of intelligent people who are disorganized. गंभीरता से जरूरत है। धन्यवाद आपका। अब मैं जयशंकर गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि वो भी अपना वक्तव्य दें और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। जैसे एक तो ये कि इसके बाद हम लोग एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करना चाहते हैं। उसके लिए मैं अपने सारे पैनलिस्ट को जो हमने बनाई है उनका विचार देने के लिए उनको ये देंगे और उससे उनकी राय भी लेंगे। ऐसा ही नहीं कि अंतिम है ये, इसमें कुछ संशोधन एडिटिंग की ज़रूरत होगी, कुछ डिलीट करने की ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर करेंगे। और उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर राउंड भी हमारा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत समृद्ध और सुधीजन बैठे हैं पूरे सभागार में, जो कि अपने पैनलिस्ट से कुछ अपने क्वेश्चंस पूछ के उनसे राय लेना चाहेंगे। धन्यवाद। जयशंकर गुप्ता जी, अब माइक आपका है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की औपचारिकता कर लेते हैं। मिथ और रियलिटी पर चर्चा करने के लिए किया। दुनिया जिसे एक दिन बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम लोग ऐसा कार्यक्रम रखना चाहते हैं, उसको आप हम लोग बुलाना चाहते हैं। हमने कहा देखो वहाँ आने का कोई इंटरेस्ट हो सकता है। एक तो जिनको बहुत सारे मेरा पत्रकार मित्र हैं, एक साथ मिल जाएंगे, जो परसों से कभी नहीं मिले, सुषमा जी भी आई हुई बैठी हुई है, स्थल दिखाई गई थी, अभी में थी, सुनीता भी हैं और सुजाता जी हैं, हमारी बेटी हैं, मतलब तमाम चौके में होंगे। हमने कहा चलो अगली बार कभी बैठे आने का बात हो जाए। एक तो ये है कि जो प्रेस फ्रीडम की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि प्रेस फ्रीडम जैसी हमारे संविधान में, कानून में कोई चीज़ है नहीं। संविधान में एक ही है 19 जिसके तहत लिखने और बोलने की आज़ादी जिस तरह से हर नागरिक को है, उसी तरह से मीडिया के लिए प्रेस को भी है। प्रेस के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन उसी में उसी का जो 19(2) है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि साहब ये आपकी आज़ादी जो है छीनी जा सकती है अगर आप असहमति और असंतोष को बढ़ावा देने की बातें कर रहे हैं, कुछ कर रहे हो। तो इसी का लाभ लेते हुए इमरजेंसी में प्रेस का गला दबाया गया था, प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी। आप कर तो रहे ना कुछ। इतने लॉयर्स ने बोला, लॉयर्स कितना कमाते हैं? उन्होंने बोला बस बताओ क्या करना है, बी कूल। लॉयर्स का पैनल है, लेकिन जब हमारी तरफ से कुछ होना होता है, there is no plan, no action, nothing. So I think we have to be more efficient, and we have to understand that efficient, mediocre people have a bigger impact than intelligent, unorganized people. And just because we are well read, we know things, and we think हम लोग वेबसाइट चलाते हैं, ट्विटर पे भी है और फेसबुक वगैरह पे भी है। जो हमारा इंडिया 140 करोड़ लोग हैं, 1.4 बिलियन। इसका मीडिया बहुत वर्ल्ड इंडेक्स पे 2023 में 160 नंबर पे था, अब 140 नंबर पे आ गया है। और बाहर के लोग जो हैं वो हमारे मीडिया का इतना मान सम्मान नहीं करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक वो विषय बता रहा हूँ। क्वेश्चन तो मैं उसके बाद ही पूछूंगा ना। तो मैं ये चाहता हूँ, क्या जो लोग जब हाउंड किए जाते हैं मीडिया के लोग, तो हम लोग चुप क्यों बैठते हैं, उनके ऊपर बात क्यों नहीं करते?
क्या इसके लिए कुछ आप लोगों के पास कोई इसका जवाब है या हम लोग ऐसे ही चलता रहेगा? We challenge the orders that are given. We have done that several times. Other than that, there is no other recourse. Of course, we can write about it. That is the power we have. But the most immediate thing one has to do is one has to use the resources and the devices that the legal process allows. The thing is, very few people actually go to court because of the fear of costs. So that is why people tend not to go to court. But like I said, DIGIPA has several lawyers that have volunteered their time pro bono. So if anyone has a problem, they can actually write to us and we are happy to take it forward.